everyone, welcome to channel Bio Asmita by your ma'am Asmita ma'am, and today we're going to discuss about human respiratory system. This video is about the parts of respiratory system, their location and their function. First of all, I want to ask you a question that do you know the basic difference between breathing and respiration, right? See, what is meant by breathing? Breathing is just inhalation and exhalation. But what we inhale O2 rich air, okay? And what we exhale CO2 rich air, okay? But what is meant by respiration? Because यहाँ पे term क्या लिया है? Respiratory system, मतलब कुछ ऐसा organ system जिसका function respiration है, right? So what is mean by respiration? Respiration is a metabolic process. It is done by mitochondria. We know that mitochondria are called as पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? वो हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट करती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया कांट वर्क इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ब्रीदिंग होना चाहिए, तभी जाके हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा. एंड बाय यूजिंग दैट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रोड्यूस एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी. So that process of formation of energy is actually respiration, and to perform that respiration we are having a specific system called as human respiratory system. But first of all we gonna deal what is mean by breathing और कौन कौन से ऐसे organs होते हैं जो breathing में involved होते हैं, ठीक है? So see, I'll draw a diagram here. Let's consider this is human, here is the nose, then upper lip, lower lip, here is the chin, okay? और यहाँ पे neck है, यहाँ से shoulder वगैरह ऐसे कुछ तो body parts है. Now what are the parts of human respiratory system? The very first part of human respiratory system is this. What is this? Nose. Human respiratory system starts from nose, okay? So let's consider here is our nose. ये हमारा nose, यहाँ पे upper lip, lower lip, मतलब यहाँ पे क्या होगा? हमारी oral cavity. I'll write it down here. The name of this part is oral cavity. What is this? This is nose. Okay, now see. As we are having a cavity in our mouth, we call that cavity as a oral cavity, buccal cavity और food cavity, right? वैसे ही एक cavity nose में भी होती है. Now क्यों होती है? कैसे होती है? See, at the external surface we are having openings. दो openings है nose को, right? जहाँ से हम क्या करते हैं? Inhalation करते हैं. These two openings are called as what? Nostrils, right? So जैसे बाहर दो nostrils है ना, वैसे अंदर भी दो nostrils होते हैं. मतलब जहाँ से हमारी टंग स्टार्ट होती है ना, उसके ऊपर अगर हमने देखा तो वहाँ पे दो छोटे छोटे होल्स होते हैं. Those are also nostrils. तो ये सरफेस पे वो अंदर है, तो वी कैन से यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है और अंदर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है. तो सपोज यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है ऐसे कुछ, तो एक्सटर्नल और इंटरनल इनके बीच में जो गैप आता है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज नेजल कैविटी. लेट्स कंसिडर हियर इज अ नेजल कैविटी. ओके, नाउ सी, यहाँ पे ऊपर आई यूज येलो कलर. सी, लुक एट हियर, दिस इज द एरिया ऑफ आर नेजल कैविटी, ओके? और यहाँ पे है ओरल कैविटी. एक सेक्शन ऐसा होता है कि जहाँ पे ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी ज्वाइन होती है. देयर इज अ जॉइनिंग ऑफ ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, मतलब मीटिंग पॉइंट होता है, एंड दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज pharynx, ओके? This pharynx is involved in the digestive system as well. Now, this pharynx continue into another area which is called as larynx. Below this pharynx, what is there? Larynx, which is also called as sound box. Heard about this? In case of boys, it is called as Adam's apple. See, what is it? It is called as Adam's apple. Adam नाम का एक लड़का था, उसके नेक में सबसे पहले इसका स्टडी किया. दैट्स व्हाट इज नेम एज एडम्स एप्पल. लाइक अगर कोई लड़का है, ठीक है, एंड दैट बॉय इज ट्राइंग टू सॉलो समथिंग, तो यहाँ पे नेक पे सेंटर पे एक बोन होता है. जैसे मतलब ये नेक है ना, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पे एक मूवमेंट हमें फील होती है. तो दैट एरिया जहाँ पे वो बोन है, जहाँ पे वो मूवमेंट हो रही है, दैट एरिया इज एक्चुअली लैरिंग्स. नाउ ये सिर्फ बॉयज़ में दिखता है, गर्ल्स में नहीं दिखता है. गर्ल्स की नेक नॉर्मल होती है, लेकिन बॉयज़ के यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा सा प्रोजेक्शन होता है. नाउ क्यों? इसका रीज़न है सेक्स हार्मोन. बॉयज़ आर हैविंग अ सेक्स हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, राइट? तो बॉयज़ में जब मैचुरेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है. बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन ये जो लैरिंग्स वाला एरिया ना थोड़ा बढ़ जाता है. दैट्स वाई इन द मैचुरेशन फेज देयर इज अ चेंज इन वॉइस ऑफ बॉय. वी कैन से देयर इज अ क्रैकिंग ऑफ वॉइस. मतलब 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड तक अलग वॉइस होता है और 10th में वो चेंज हो जाता है. Why? Because of testosterone, and girls are not having that testosterone.
दैट्स वाई नो चेंज इन द शेप ऑफ लैरिंग्स, दैट्स वाई गर्ल का वॉइस जैसे कि वैसे रहता है, ठीक है। अभी ये है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे और एक पाइप होती है जो ऐसे सी शेप रिंग से बनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर। ये जो येलो कलर का मैंने निकाला है ना, दिस इज द नेक्स्ट पोर्शन और पार्ट विच इज कॉल्ड एज ट्रकिया। What is it? It is trachea. Okay, and then this trachea divides into two branches. ये दो ब्रांचेस भी ऐसे रिंग्स थ्रू बने होते हैं। तो ये जो मैंने अभी निकाला है ना, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई। मतलब कितने ब्रोंकाई है? तो वी आर हैविंग 2 ब्रोंकाई। ओके, नाउ ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होते हैं, से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ऐसे इसका डिवीजन होता है। नंबर ऑफ स्मॉल ब्रांचेस गेट फॉर्म। ओके, और ये जो ब्रांचेस है दीज आर कॉल्ड एज bronchioles. What is it? Bronchiole. Okay, and at the end of this bronchiole there is a presence of circular sac like structures. ऐसे structures होते हैं and we call these structures as what? Alveoli. Okay, and here we can say ऐसे जो एक triangular area यहाँ पे तैयार होता है which is called as lung. Okay, so see this reddish part, this is bronchiole, this is bronchi divides into bronchiole, और ये जो मैंने पार्ट निकाला है ये सर्कुलर वाला, this is what? These are the alveoli sac. Now these are the basic parts or organs of our human respiratory system. Okay, now अभी देखो हम जब इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है? वी आर हैविंग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, राइट। मैंने बोला अंदर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एयर एंटर्स वाया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर एंटर्स इनटू नेजल कैविटी. From the nasal cavity it goes to pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchiole, and then into alveoli. And in the alveoli there is a diffusion of gases. What happens in the alveoli? There is, I'll write here is the diffusion. डिफ्यूजन मतलब ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। दैट्स वाई जो भी एयर हमने इनहेल की है उसका ऑक्सीजन जाएगा सेल में, ब्लड में, और जो ब्लड में और टिश्यूज में, सेल में जो CO2 तैयार हो रहा है वो CO2 आएगा एल्वियोलाइज में, ठीक है। तो अभी सोचो CO2 गॉट एंटर्ड इनटू एल्वियोलाई. नाउ रिवर्स फ्लो विल बी देयर. CO2 rich air from alveoli sac enters into bronchiole. From the bronchiole, it goes to bronchi, then trachea, then larynx, then pharynx, then nasal cavity, और यहाँ पे जो external nostrils है यहाँ से out. Okay, so this is the overview of breathing, that is inhalation and exhalation. अभी देखो ये जो पूरे parts है इन सबको मिला के हम क्या बोल रहे हैं? Human respiratory system. But as per the location, this human respiratory system is divided into two basic parts. That is अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सी ये जो पार्ट है मतलब नोज, नेजल कैविटी और ये फैरिंग्स, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. और फैरिंग से नीचे मतलब ये वाला पार्ट कौन कौन आएगा इसमें? लैरिंग्स आएगा, ट्रकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई सैक. दिस पार्ट्स आर कॉल्ड एज लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट. एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट upper respiratory part. Okay, in detail we going to discuss nose, nasal cavity and pharynx. Okay, so first of all nose. मैंने क्या बोला? nose को nostrils है. कितने nostrils है? तो 4 nostrils. Okay, I'll write here. Okay, what we going to discuss? we going to focus only on the nasal cavity and pharynx. Okay, so see in our nose how many nostrils we are having? We are having 4 nostrils. These nostrils are also called as nares, and we are having 2 subtypes, that is external and internal. Cleared? Now between external and internal there is a space. That space is called as what? Suppose इतनी space है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Nasal cavity. Now ये जो nasal cavity है ये 3 सब पार्ट में डिवाइड होती है. मतलब ये जो हमारा टिप ऑफ नोज है which is called as वेस्टिब्यूल. व्हाट इज इट? वेस्टिब्यूल. देन ये मिडल वाला पोर्शन जो थोड़ा बड़ा होता है इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पार्ट. ओके, देन द थर्ड वन जो अंदर होता है, सबसे अंदर होता है, दैट इज सेंसरी पार्ट.
Okay, one by one we're going to discuss these three parts. First of all, vestibule. It's a tip जहाँ पे क्या है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनहेलेशन ऑफ एयर होगा. बट जो भी हम एयर इनहेल करेंगे उसमें डस्ट पार्टिकल तो होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं या और भी कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं. अगर हमने वैसे कि वैसे एयर इनहेल किया तो दैट पार्टिकुलेट मैटर विल गेट डिपॉजिट इन आर लंग्स, ट्रकिया और ब्रोंकाई, और कुछ तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं. सो टू avoid those particles or to take preventive measures in our vestibule, there are the presence of fine hair. क्या होता है यहाँ पे, here is the presence of fine hair and this hair do the filtration of air. मतलब जो भी एयर हमने इनहेल की है उसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव करने का काम कौन करता है, तो हेयर करता है. ठीक है, उसके बाद ये मिडल वाला पोर्शन. ओके, कीप इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू. ये जो मिडल वाला पोर्शन है इट मॉइस्टन अप योर एयर, इट मेक्स एयर वार्म. ओके, अभी वार्म कैसे बनाते हैं, सी शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हमें यहाँ पे कुछ लगता है, लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो और यहाँ पे नोज पे अगर कुछ लगता है ना तो इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट होता है. या तो फिर ज़्यादा धूप में आप वॉक कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, तो भी नोज से ब्लीडिंग आना स्टार्ट होता है. रीज़न, ये जो वाला एरिया है ना हमारा, यहाँ पे 5 आर्टरीज है. कीप इन माइंड this area, which area, this one, respiratory area, it's having 5 arteries and because of these 5 arteries, मतलब arteries में थोड़ा सा warm temperature होता है या pressure होता है. ठीक है, so because of that pressure as well as warm temperature, जो भी air हमने inhale की है that air get warms up, so that जब वो lungs में जाएगी, जब वो ट्रकिया में जाएगी तो easily उस air का diffusion होगा. ऊपर से यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं जो कीप ऑन सिक्रेटिंग म्यूकस. क्यों म्यूकस सिक्रेट करना है, यहाँ पे हेयर थे, वेस्टिब्यूल में क्या था, हेयर थे, राइट. तो हेयर ने पार्टिकुलर मैटर को सेपरेट किया, अभी उसको ट्रैप करके बॉडी से निकालना है. दैट्स व्हाई रेस्पिरेटरी पार्ट इज हैविंग व्हाट, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड. ओके, इसके अंदर होता है सेंसरी पार्ट. We know that nose is a sense organ. With the help of nose, we can sense smell. And ये जहाँ पे होता है, sensation of smell जिस जगह पे होता है, उसको बोलते हैं sensory part. सबसे अंदर होता है, मतलब जहाँ पे हमारे internal nerves है ना, वहाँ पे. And this sensory part is also called as olfactory part. Now, why it is called as olfactory part? Because in our brain there is a one area named as olfactory lobe. We are having a nerve which is called as olfactory nerve. तो जो भी कुछ चीज़ है आप उसका स्मेल ले लो तो उसकी इन्फॉर्मेशन जिस नर्व थ्रू पास होती है, ब्रेन के जिस एरिया में पास होती है, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी. दैट्स वाई, मतलब वो नर्व्स कहाँ पे कनेक्टेड है, तो सेंसरी एरिया में कनेक्टेड है. दैट्स वाई उसको और एक नाम दिया ऑल्फैक्टरी. अंडरस्टूड? ओके, सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ व्हाट, नेजल कैविटी. आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर पॉइंट, दैट इज अबाउट द साइनस. पता है आपको, वी आर हैविंग साइनस. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइनस का प्रॉब्लम होता है. साइनस मतलब क्या है, तो हमारे ये जो फोरहेड है ना, यहाँ पे बोन्स में स्कल बोन है, राइट. दीज आर ऑल दी स्कल बोन्स. ओके, तो यहाँ पे स्कल बोन्स में कुछ गैप्स है, यहाँ पे और यहाँ पे. ये जो चिक बोन वाला एरिया है ना, यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस है. दोज एम्प्टी स्पेसेस ऑफ स्कल आर कॉल्ड एज साइनस. ठीक है, अभी कुछ टाइम या कुछ सीजन में से होता है, कुछ लोगों में से होता है कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, यहाँ पे म्यूकस डिपॉजिट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा सिर दुखता है. या तो फिर जब हमें कोल्ड होता है, सर्दी खांसी होती है, तभी भी सर भारी होता है. रीज़न साइनस है. साइनस में भी यहाँ पे क्या है, अभी तो एम्प्टी स्पेस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस डिपॉजिट होता है. तो जैसे जैसे म्यूकस डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे जो आर्टरीज है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल है, इनके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट होता है एंड दैट्स वाई हेडेक होता है. ठीक है, और एक बात है कि ये एम्प्टी स्पेसेस है क्यों, तो 2 फैक्टर्स है इसके लिए. मतलब देर आर 2 फंक्शंस ऑफ साइनसेस. ऐसे ही नहीं है. द साइनसेस मतलब क्या है, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस. बट किसके एम्प्टी स्पेसेस, स्कल के एम्प्टी स्पेसेस. सी स्कल का पूरा वेट किसके ऊपर है, नेक के ऊपर है. ओके, तो टू रिड्यूस द वेट ऑफ स्कल वी आर हैविंग साइनसेस, मतलब एम्प्टी स्पेसेस. और एक फंक्शन है इसका, लाइक वॉइस. वी आर हैविंग साउंड बॉक्स हियर, राइट, बाय विच साउंड गेट प्रोड्यूस. बट एवरीवन साउंड इज डिफरेंट. लाइक आपने मेरा आवाज़ सुना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये किसका वॉइस है, या मेल का, या किसी, सबका वॉइस अलग अलग होता है, राइट. तो उसका क्रेडिट भी जाता है साइनस को. साइनस में फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होते हैं, रेजोनेंस, सॉरी फ्रीक्वेंसीज नहीं, रेजोनेंस क्रिएट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस अलग अलग टाइप के वॉइस जनरेट होते हैं. ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्यों बताया, बिकॉज आपको और एक पार्ट ध्यान में रखना है, दैट इज टॉन्सिल्स. ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस टॉन्सिल्स. टॉन्सिल्स पता है ना आपको, टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पे दुखता है. कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके टॉन्सिल्स को स्वेलिंग आता है, फिर टॉन्सिल्स निकालने पड़ते हैं. ठीक है, सो सी लुक एट दिस एरिया.
ये हमारी एयर पाइप, राइट, यहाँ से, सॉरी एयर पाइप नहीं, नेजल कैविटी जहाँ से एयर अंदर आ रही है, और ये है हमारी ओरल कैविटी जहाँ से फूड आता है। तो यहाँ पे एक टिश्यू होती है और यहाँ पे एक होता है, इसको बोलते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल I'll discuss pharynx, then I'll focus on the tonsils. Okay, so we'll start with the pharynx first. What is mean by pharynx? Pharynx means the meeting point of our nasal cavity and oral cavity. Okay, now this pharynx is again divided into three parts. See, I'll write here. Wait a minute. See, what is pharynx? Pharynx is a meeting point. किसका मीटिंग पॉइंट है? दिस इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन व्हाट? नेजल एंड ओरल कैविटी। जहाँ पे नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? फैरिंग्स। नाउ मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? रीजन, दिस फैरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। Okay, so I'll make a circle. Look at this area. ये येलो वाला पोर्शन देखो, दिस इज व्हाट? दिस इज आवर नेजल कैविटी, राइट। ओके, और मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर में निकाला है हमारा, सॉरी, दिस इज ओरल कैविटी, ठीक है। तो अभी देखो नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी ये ज्वाइन हो रहे हैं, और ये ऑरेंज कलर देखो, यहाँ पे हमारा फैरिंग्स। तो अगर हम ये वाला पोर्शन देखते, सिर्फ ये वाला, तो दिस एरिया इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ व्हाट? नोज और नेजल कैविटी। तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं नेजोफैरिंग्स। ओके, अगर हम ये नीचे वाला सर्कल देखते हैं, लुक एट दिस एरिया, तो यहाँ पे ओरल कैविटी फैरिंग्स के कॉन्टैक्ट में आ रही है, तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज ओरोफैरिंग्स। ओके, और फैरिंग्स के नीचे यहाँ पे क्या दिखाया था मैंने? लैरिंग, साउंड बॉक्स रिमेम्बरिंग एडम्स एप्पल इन दी बॉयज। ओके, तो फैरिंग, ऑरेंज वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है और व्हाइट वाला लैरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो एरिया है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज लैरिंगोफैरिंग्स। अंडरस्टूड? सो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? Three parts are there. The area of pharynx which is in contact of nasal cavity is called as nasopharynx. The area of pharynx which is in contact of oral cavity is oropharynx, and the third one जो larynx के contact में है that is called as laryngopharynx. Okay, ये तीनों मिला के क्या बनता है? pharynx. This is important for your MCQ. Now किसका फंक्शन क्या होगा? सबसे ऊपर कौन आ रहा है? नेजोफैरिंग्स आ रहा है। दिस इज द एरिया जहाँ पे कौन ओपन हो रहा है? नेजल कैविटी ओपन हो रही है। सो नेजोफैरिंग्स विल कैरी ओनली एयर, बिकॉज ओरल कैविटी तो नीचे है ना, उसके ऊपर नेजोफैरिंग है, तो नेजोफैरिंग तो सिर्फ एयर ही कैरी करेगा। नाउ ओरोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स मतलब कौन सा एरिया? जहाँ पे ओरल कैविटी फैरिंग्स में ओपन हो रही है, मतलब ओरोफैरिंग्स तो 100% फूड को कैरी करेगा। लेकिन ऊपर से कौन आ रहा है? कौन ओपन अप हो रहा है? यहाँ पे है नेजोफैरिंग, और नेजोफैरिंग से क्या आएगी? एयर आएगी। इसका मतलब ओरोफैरिंग्स कैरी बोथ एयर एज वेल एज फूड। ओके, फूड, वाटर, व्हाटएवर इट इज, जो भी आप खा पी रहे हो वो सारा यहाँ से जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लैरिंगोफैरिंग्स। ये क्या कैरी करेगा? ये तो सबसे नीचे है, तो नेजो ने, ओरो ने जो भी लाया वो सब कुछ कौन कैरी करेगा? लैरिंगोफैरिंग्स कैरी करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल अबाउट योर फैरिंग्स। नाउ विल फोकस ऑन दिस टॉन्सिल्स। ओके, ये हमारी नेजल कैविटी, यहाँ से क्या आएगी? एयर अंदर आएगी। ओके, तो इस एयर कैविटी के नीचे एक टॉन्सिल होता है। ओके, आई विल ड्रॉ लाइक दिस। यहाँ पे से एक टॉन्सिल्स है, यहाँ पे कैसे टॉन्सिल्स है, ठीक है। टॉन्सिल का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब टॉन्सिल्स का स्वेलिंग या टॉन्सिल का पेन एक सर्टन एज ग्रुप में ही होता है। वी कैन सफर फ्रॉम टॉन्सिल पेन अप टू 13 ईयर ओनली। इसके बाद टॉन्सिल्स का पेन नहीं होता है, स्वेलिंग भी नहीं होता है, बिकॉज दिस इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इम्यून ऑर्गन। अप टू 13 ईयर हमारी इम्यून सिस्टम 100% डेवलप नहीं होती है। आफ्टर 13 ईयर्स और एट द एंड ऑफ 13 ईयर कंप्लीट मैचुरेशन ऑफ अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इज दैट। तो उसके पहले टॉन्सिल्स हमें बचाते हैं, मतलब फूड थ्रू, वाटर थ्रू, एयर थ्रू जो भी इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? टॉन्सिल्स करते हैं। बट कभी कभी टॉन्सिल्स को ही इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब टॉन्सिल को स्वेलिंग आता है। इमेजिन करो ये इतनी सी स्पेस है, ठीक है, और इस स्पेस से क्या अंदर आने वाली है? एयर अंदर आने वाली है। बट क्या हुआ? अभी टॉन्सिल्स को हो गया स्वेलिंग, टॉन्सिल्स को क्या हुआ है? स्वेलिंग हुआ है। तो मतलब टॉन्सिल जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ेगा उसको स्पेस ज़्यादा लगेगी। तो बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स ये जो एयर पैसेज है
मतलब क्या, जहाँ से एयर आने वाली है वो नैरो हो जाएगा, राइट। मतलब वो बच्चा प्रॉपर से ब्रीद इन या ब्रीद आउट नहीं कर सकता है, चॉकअप हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि रिमूव टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स को निकाल दो। क्यों निकाल दो? बिकॉज ये तो है लिम्फोइड ऑर्गन, बट अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और अगर हमने इसको निकाल भी दिया तो इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वी आर हैविंग अदर एक्वायर्ड इम्यून ऑर्गन्स, ओके, और अदर इम्यून मैकेनिज्म्स। दैट्स व्हाई up to 13 years only a kid can suffer from tonsillitis or tonsil swelling. Understood? So what we discussed today, we discussed about nose, nasal cavity, then we discussed about the sinuses, tonsils and pharynx. Means we have done with the upper respiratory system. This is all for now. In the next video we will be dealing with the lower respiratory system. Okay, so bye bye, thanks for watching.